چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی کا الزام دہرا دیا. کہا کہ آج کے الیکشن میں بیلٹ باکس بھرنے اور پولنگ ایجنٹس کو غیر قانونی طور پر نکالنے کی متعدد تحریری شکایات جمع کرا دیں. الیکشن کمیشن فوری کارروائی کرے اور کم از کم دوسرے مرحلے میں شفافیت یقینی بنائے. فیز 1 پر ایکشن ہوتا تو فیز 2 انتخابات کی ساکھ بحال ہو جاتی. جہاں دھاندلی ہوئی وہاں دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ پرامن طریقے سے جاری ہے. لوگ مریم نواز کی کارکردگی سے متاثر ہو کر شیر کو ووٹ ڈال رہے ہیں. رونا دھونا پارٹی کا وجود کہیں نظر نہیں آ رہا. دھاندلی کا رونا رونے والے پھر چیختے چلاتے رہیں گے. عظمہ بخاری نے آزاد کشمیر الیکشن کی ویڈیوز بھی شیئر کی. آزاد کشمیر میں انتخابات کا دوسرا مرحلہ. مظفر آباد، نیلم اور مہاجرین کی نشستوں پر پولنگ جاری. مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں میں کانٹے کا مقابلہ. پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا. مظفر آباد ڈویژن کی 8 نشستوں پر امیدوار مد مقابل. مہاجرین کی 12 نشستوں پر 143 امیدواروں میں مقابلہ. 20 نشستوں پر 12 لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے. انتخابات کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی کا الزام دہرا دیا. کہا آج کے الیکشن میں بیلٹ باکس بھرنے اور پولنگ ایجنٹس کو غیر قانونی طور پر نکالنے کی متعدد تحریری شکایات جمع کرا دے. الیکشن کمیشن فوری کارروائی کرے اور کم از کم دوسرے مرحلے میں شفافیت یقینی بنائے. فیز 1 پر ایکشن ہوتا تو فیز 2 انتخابات کی ساکھ بحال ہو جاتی. جہاں دھاندلی ہوئی وہاں دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. کراچی، لاہور، راولپنڈی سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں مہاجرین کی نشستوں پر ووٹنگ. لاہور میں 2 نشستوں LA 41 اور LA 34 پر پولنگ. راولپنڈی اور اسلام آباد میں مہاجرین کی 3 نشستوں پر بھی ووٹنگ کا عمل جاری. ملتان، فیصل آباد، سرگودا میں بھی کشمیری ووٹرز حق رائے دہی میں مصروف. حیدرآباد میں LA 34 اور LA 40 کی نشستوں کے لیے پولنگ جاری. مظفر آباد کے حلقہ LA 27 میں پولنگ ملتوی کر دی گئی. الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے کہا شدید بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث حلقے میں پولنگ نہیں ہو سکی. متعدد سڑکیں بند ہونے سے پولنگ عملہ اور انتخابی سامان بروقت نہ پہنچا. نیا شیڈول آج جاری کیا جائے گا. ثالثوں کی امریکہ ایران کشیدگی کم کرانے کی سفارتی کوششیں تیز. پاکستان، قطر، UAE اور ترکی رابطوں میں مصروف. قطر کے آبنائے ہرمز کھولنے سے متعلق امریکی، ایرانی اور عمانی حکام سے مذاکرات. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ. عباس عراقچی نے کہا ترک اور سعودی وزیر خارجہ سے بھی الگ الگ ٹیلی فونک گفتگو کی. ایران کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان رابطہ. سعودی ولی عہد کا ایران پر مجوزہ حملوں پر تشویش کا اظہار. امریکی صدر کا ایران پر حملہ فوری روکنے کا اعلان. ٹرمپ نے کہا ایران پر حملہ اس لیے روکا تاکہ معاہدہ جلد طے پا جائے. مشرق وسطی کے کئی ممالک نے حملہ روکنے کی درخواست کی. ایران کے ساتھ معاہدے کے خد و خال پر اتفاق ہو چکا ہے. معاہدے میں آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھولنے اور جوہری خطرے کا خاتمہ شامل ہے. سندھ اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. پشاور اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش. لنڈی کوتل میں شدید بارش کے بعد مختلف مقامات پر سیلابی ریلیں. وین سیلابی ریلے میں بہہ گئی. کیرتھر کے پہاڑی سلسلے میں بارش. گاج ندی میں سیلابی ریلا داخل. سیرائے تھر میں بھی بادل برس پڑے. مٹھی اور دیگر نشیبی علاقے زیریاب. چنڈوالا یار خان اور دادو میں بھی بارش. محکمہ موسمیات کی 5 اگست تک بادل برسنے کی پیش گوئی. میرپور خاص اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارش. معمولات زندگی شدید متاثر. نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا. شاہراہیں، چوک اور چوراہے زیریاب. ٹریفک کی روانی متاثر. بازار بند. گھر کی سیڑھی آبشار بن گئی. شہری گھروں میں محصور. بارش کے ساتھ ہی بجلی، مواصلاتی نظام اور انٹرنیٹ سروس بھی متاثر.
आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी बड़े बड़े नाम मद्दे मुकाबिल। LA-25 में नून लीग के शाह गुलाम कादिर और पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद में जोर का जोड़। LA-31 में पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ अकबर और मुस्लिम लीग नून के राजा साकिब मजीद के दरमियान सख्त मुकाबला। साबिक वजीर आजम राजा फारूक हैदर का पीपल्स पार्टी के इशफाक जफर से कांटे का मुकाबला। IPP के रहनुमा सरदार तनवीर इलियास 3 हलकों LA-15, LA-22 और LA-25 से उम्मीदवार। आज़ाद कश्मीर के दूसरे मरहले में मर्द उम्मीदवारों के साथ साथ 6 खवातीन भी मैदान में। LA-27 और LA-37 पर मुस्लिम लीग नून की खातून उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रही हैं। LA-37 से पीपल्स पार्टी की भी खातून उम्मीदवार मैदान में। LA-25, LA-26 और LA-44 से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की खवातीन उम्मीदवार। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात। लाहौर में पोलिंग के दौरान पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात। PP रहनुमा फैसल मीर ने कहा, ये लोग इलेक्शन चुराना चाहते हैं, हमारे पोलिंग एजेंट्स को बैठने नहीं दिया जा रहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मुलूक खोखर ने कहा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा सुबह धांधली का ख्वाब देख रहे हैं, उनके पास पोलिंग एजेंट ही नहीं है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के लिए यहाँ पर कराची में LA-34 जम्मू 1 और LA-40 वादी 1 के हलकों के लिए वोटिंग की जा रही है। मुजफ्फराबाद डिवीजन में किसका पलड़ा भारी। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत महाजरीन की नशिस्तों पर कौन मारेगा मैदान। वोटर का किसकी तरफ रुझान। हम न्यूज की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की लम्हा बलम्हा कवरेज, पोलिंग से नताइज तक, सब कुछ हम न्यूज पर। सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और यूनिट्स बन के वो ओनरशिप नहीं लेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। मोहसिन नकवी निज़ाम में तब्दीली का आगाज अपनी वजारत से करें। वजीर दिफा का मशवरा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, नेशनल एक्शन प्लान के 12 नुकात वजारत दाखिला की जिम्मेदारी हैं जिन पर अमल दरामद नहीं हो सका। उन नुकात पर अमल दरामद करके निज़ाम में तब्दीली का आगाज करें। निज़ाम को तब्दील करने का असल फॉरम पार्लियामेंट है या मामले को काबीना में लाया जा सकता है। आईनी इदारों को नजरअंदाज करके ताजरों के सामने इतनी बड़ी बात करना असर नहीं रखता। पीपल्स पार्टी का वफाकी वजीर दाखिला से मुस्ताफी होने का मुतालबा। नए सूबों की तजवीज़ की मुखालिफत भी कर दी। कहा, मुतनाज़ गुफ्तगू से मुल्क का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मोहसिन नकवी ने पहले सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात की, फिर मुतनाज़ बयान दिया। भयानक साजिश की जा रही है। सिंध की तकसीम की बात करने वाले अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करेंगे। नए सूबे पंजाब के अवाम का मुतालबा है। जब तक सिंध के अवाम नहीं चाहेंगे, नया सूबा नहीं बनेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एक कमीशन बनाने की तजवीज़ पर आमादगी जाहिर कर दी। मेरे खत के जवाब के साथ अपनी तजावीज़ भी भेजी हैं, उनकी तजवीज़ का जायजा लूंगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वफाकी हुकूमत और मुतालिका फरीकैन से राय लेंगे। हर कीमती जान का ज़िया कौमी सानिया है। अवलीन तरजीह बहरान के खात्मे में मदद करना है। चाहते हैं आज़ाद कश्मीर में जल्द मामूलात ज़िंदगी बहाल हो। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत बनेगी। खिदमत के मैदान में कोई भी नून लीग का मुकाबला नहीं कर सकता। कश्मीर जाकर देखें, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के तरक्याती मंसूबे नजर आएंगे। सियासत करना हर सियासी जमात का हक है। मुस्लिम लीग नून तामीर और तरक्की की सियासत करती है। साजिशी अनासिर मुहाजिर सीटों पर सवाल उठा रहे हैं। नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। नवाज शरीफ मरी रवाना हो गए, पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई सरदार अवैस अहमद लगारी ने कहा, हुकूमत सोलर तवानाई के फ़रोग़ की हामी है। मकामी IPPs के मालिकान के साथ बिजली की खरीदारी के निर्खों पर नजरसानी की गई है। माजी में सोलर पैनल्स महंगे थे और सरमायाकारों को ज्यादा मुनाफा मिल रहा था। बोझ आम बिजली सारिफीन पर पड़ता था। अब हुकूमत सोलर के साथ साथ बैटरी स्टोरेज पॉलिसी पर भी काम कर रही है। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी का तफसीली इंटरव्यू देखें हम न्यूज़ पॉडकास्ट में।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बदबू से शहरी परेशान। तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक सिस्टम के तमाम प्रेशर्स मामूल के मुताबिक हैं। किसी किस्म की गैस लीकेज रिपोर्ट नहीं हुई। गुज़श्ता रात अबुल हसन इस्फहानी रोड पर नई पाइपलाइन की टेस्टिंग के बायस गैस की बू फैली। टेस्टिंग के दौरान बू पैदा करने वाला मादा शामिल किया गया। DGISPR की समर इंटर्नशिप में तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त। DGISPR ने कौमी सलामती, दहशत गर्दी और सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर तफसीली गुफ्तगू की। समर इंटर्नशिप में पाकिस्तान भर के 21 मुख्तलिफ स्टेशंस पर 6000 से ज़ायद तलबा शरीक। मुल्क के बेशतर शहरों में आज फिर बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध और शिमाली मशरक़ी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के। रुझान में रोदकोही के सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। ट्रैक्टर ट्रॉलियां दलदल में धंस गईं। मुल्तान, फैसलाबाद, शेखोपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाकों में पानी खड़ा रहा। पाक फौज के मेजर हाफिज एहसान इलाही दहशत गर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 5 खारिजी मारे गए। हलाक खारिजी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR ने कहा, गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखेंगे। बलूचिस्तान की जिला नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। खुदकुश बमबार समेत 7 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने में असलहा और बारूदी मवाद का जखीरा तबाह कर दिया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान का गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद की जाने पेशरफ्त का खैर मकदम। अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की की सालिसी की कोशिशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, उम्मीद है गजा अमन मंसूबे के वादों पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। पाकिस्तान का आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। बोर्ड ऑफ पीस ने गजा की तामीर नौ के लिए जामे रोड मैप जारी कर दिया। इसराइली फौज मरहलावार गजा से वापस जाएगी। आलमी इस्तेहकाम फोर्स जंगबंदी, इमदाद और सिक्योरिटी में मदद देगी। अमरीकी शहरियों को मशरक़ वुस्ता से इनखिला और मोहतात रहने की हिदायत। अमरीका ने शहरियों के लिए इंतबाह जारी कर दिया। अमरीका ने इसराइल समेत बहरीन, इराक, उर्दन, कुवैत, लबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में सफारतखानों के जरिए शहरियों को आगाह किया। काराकोरम की चोटी पर लापता एक और कोहपैमा की लाश मिल गई। अब तक 4 कोहपैमाओं की लाशें निकाली जा चुकी। बर्फानी तोदा गिरने से 10 कोहपैमा लापता हुए थे। हुक्काम के मुताबिक इंतहाई खतरनाक मकाम पर मजीद लाशें नजर आई हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की खस्ता हाल सर्विस रोड की बहाली का काम शुरू। फैजाबाद से कोराल चौक तक 8 किलोमीटर तवील रोड तामीर होगी। 6 रोया सड़क, 1 अंडरपास और 1 फ्लाईओवर मंसूबे का हिस्सा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तरक्याती काम का जायजा लेने पहुंचे। मंसूबे को 1 साल के बजाय चंद माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। इस्लामाबाद रावलपिंडी को पानी फराहम करने वाला रावल डैम आलूदगी की जद में। पानी में तैरता कचरा, मुर्दा मछलियां और बदबू शहरियों के लिए तशवीश का बायस। आलूदगी ने खूबसूरती और आबी हयात दोनों को खतरे में डाल दिया। भारत में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। रियासत आसाम में सैलाब से हलाकतों की तादाद 82 हो गई। 10 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर। रियासत केराला में लैंडस्लाइडिंग के वाकयात में 3 अफराद हलाक। नई दिल्ली की सड़कें पानी में डूब गई। बिहार, हिमाचल, गुजरात समेत कई रियासतों में सैलाबी सूरत हाल। निजाम जिंदगी दरहम बरहम। परू में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, सवार तमाम 13 अफराद हलाक। मरने वालों में सयाह और 2 पायलट शामिल। तैयारा सयाहों को आसार कदीमा का फजाई नजारा करवा रहा था।
यूनान में जंगल से आबादी तक शोलों का सफर, धुएं से आसमान सयाह, पूरा जंगल राख। हेलीकॉप्टर भी बेकाबू शोलों को ना रोक सके, साहिली बस्तियां खाली करा दी गई। सैकड़ों फायर फाइटर्स